In our last class, we were doing the quantity theory of money as given by Fisher. Fisher had said that money is used only for transaction purposes. That is, money is used only as a medium of exchange. Money is used only to purchase goods and services. Otherwise, money has no value. It is just a piece of paper. With money, we purchase goods, we purchase services. And that is the only purpose of money, according to Fisher. We started with Devon-Jatti's quantity theory in 1588. Then it came economists like Hume, who established a functional relationship between the quantity of money and the price level. Hume has said, as the quantity of money increases, the purchasing power in the hands of the people will increase. If the purchasing power increases, we have more money in our pockets, the demand will increase. But as the classical economists had assumed full employment, therefore supply will not increase. So demand will increase because of increased purchasing power, supply will not increase, and hence the price rises and the value of money falls. So we have a functional relationship between the quantity of money and the price level. Later economists, Ricardo, J. Mill, Taussig, and finally Fisher, replaced this functional relationship by a direct and proportionate relationship between the quantity of money and the price level. They said if you double the quantity of money, the prices will be doubled and the value of money half. If you half the quantity of money, the price level will be half and the value of money will be double. मैंने एग्जाम्पल दिया था जब हम नौकरी में घुसे थे 1981-82 में, तब 700 रुपया तनख्वाह था. वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़्यादा था. वो 700 रुपया खर्चा नहीं होता था. 4 आना में बड़ा बड़ा रसगुल्ला मिलता था, 10 पैसा किलो आलू, 10 पैसा किलो भिंडी, 5 रुपया में पूरा थैली भर का बाजार हो जाता था. सो द वैल्यू ऑफ मनी वॉज वेरी हाई. उस समय कभी सोचे नहीं थे कि लाख रुपया से अधिक तनख्वाह होगा. इतना तनख्वाह होकर भी कुछ पैसा बचता नहीं है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी हैज़ फॉलन. उसके बाद एक डायग्राम दिखाए थे जहाँ दिखाए थे कि प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी में एक डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. उसके बाद बोले थे दैट द क्वांटिटी ऑफ मनी और द प्राइस लेवल is determined where the demand for money is equal to the supply of money. कोई भी वस्तु लेंगे, कोई भी सामान लेंगे, कहाँ पर मूल्य निर्धारण होता है? जहाँ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. उसी तरह the price level is determined at the point where the demand for money is equal to the supply of money. Demand supply economics में सब कुछ है. You can make even a parrot into a good economics. All that we must learn are two words, supply and demand. Now we shall deal the supply of money and the demand for money separately. What is supply of money? Supply of money will be the quantity of money in your hands, we call it M. Quantity of money means coins, notes and bank deposits. जो पैसा आदमी होल्ड करके रखता है, घर का तकिया के अंदर छुपा कर रखता है, घर में क्या बोलते हैं फ्लोर का नीचे छुपा कर रखता है, डबल पर्दा में पैसा छुपा कर रखता है, ब्लैक मनी है, वो बैंक में जमा नहीं कर सकेगा. जो ब्लैक मनी है वो इसमें नहीं आएगा. हम लोग ब्लैक मनी से कारोबार नहीं करते हैं. तो सप्लाई ऑफ मनी में आएगा कॉइन्स जो है, नोट्स जो है मेरा पॉकेट में, मेरा पास, और बैंक डिपॉजिट से सप्लाई ऑफ मनी एम. और इसको गुना करने होगा वी. वी मीन्स द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मुद्रा की चलन वेग, मुद्रा की चलन गति. इसे 500 रुपया का नोट किसी का पॉकेट में ज़्यादा दिन नहीं रहता है. ज़्यादा दिन क्या, ज़्यादा मिनट्स में नहीं रहता है. कि 500 रुपया का नोट से हम पेट्रोल खरीदा,
पेट्रोल वाला इसको लेकर उस बच्चा का स्कूल का फी दिया, स्कूल वाला इस पैसा लेकर स्कूल का जो क्लर्क है उसका तनख्वाह दिया। 500 रुपया 4 बार हाथ बदला, वही रुपया। 500 रुपया कितना पैसा का काम किया? 2000 रुपया का, क्योंकि 4 बार हाथ बदला। हम उससे पेट्रोल खरीदे, पेट्रोल वाला उससे स्कूल में लड़का का फी दिया, स्कूल वाला फिर स्कूल का क्लर्क को पेमेंट किया। So this 500 rupees has changed hands 4 times. So this has performed the work of 2000 rupees. That we call the velocity of circulation of money. मुद्रा की चलन गति. How many times the money changes hands? कितना बार पैसा बदलता है? So यही है supply of money. और demand for money में फिशर क्या किया? What is the demand for money? डिमांड फॉर मनी में आएगा द गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्टेड, कितना वस्तु सेवा ट्रांजैक्ट हुआ, मल्टीप्लाइड बाय देयर एवरेज प्राइस लेवल, पीटी। द गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्टेड इनटू द प्राइस लेवल, एंड डिमांड फॉर मनी विल बी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, सो पीटी विल बी इक्वल टू एमवी, सो पी विल बी इक्वल टू एमवी बाय टी। This was Fisher's equation. इसके बाद फिशर सप्लाई ऑफ मनी में एक फिशर इक्वेशन था। इसके बाद फिशर सप्लाई ऑफ मनी में बैंक डिपॉजिट्स ले आया, उसका नाम दिया एम डैश। एम डैश है बैंक डिपॉजिट्स, इनटू करने होगा वी डैश। वी डैश मतलब है बैंक डिपॉजिट्स कितना बार हाथ बदलता है। बैंक इज ए प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंक मेरा पैसा से प्रॉफिट कमाता है। हम जितना पैसा जमा करते हैं बैंक में उतना पैसा नहीं रहता है, क्योंकि बैंक उधार देता है। हम रखते हैं, हमको 4% इंटरेस्ट देगा, लेकिन जब हम उधार लेंगे, बैंक से लोन लेंगे गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, तो 9% इंटरेस्ट देगा। सो बैंक एक लाभ कमाने की जगह है। कमर्शियल बैंक और प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, तो बैंक में भी पैसा हाथ बदलता है। हम जमा किए, मेरा पैसा उसको लोन दिया, उसका पैसा तुमको दिया जब उठाने गया। इसलिए अगर सब आदमी एक साथ बैंक में पैसा उठाने जाएगा, उसी दिन बैंक फेल कर जाएगा, क्योंकि जितना बैंक का डिपॉजिट्स है उतना बैंक में रहता नहीं है। इफ एवरीबॉडी गोज टू withdraw their money from the bank, that day bank will fail, and we call that run on the bank. बैंक फेल कर जाएगा। ये छोटनागपुर बैंक है, गुरु गोविंद सिंह मेन रोड का थोड़ा आगे, वो फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि हल्ला हो गया, बैंक में पैसा नहीं है, सब कोई चेक लेकर उठाने गया, बैंक में उतना पैसा है नहीं, बैंक फेल, रन ऑन द बैंक। यूनाइटेड बैंक में भी उस समय हुआ था, लेकिन संयोग से उस समय ब्रांच बैंकिंग हो गया था। पहले एक ही बैंक का एक ही ब्रांच था, हजारीबाग में छोटनागपुर बैंक, रामगढ़ में बैंक ऑफ रामगढ़, रांची में दूसरा कोई बैंक, दैट वाज यूनिट बैंकिंग। बार बार बैंक फेल करता था। अभी हो गया है ब्रांच बैंकिंग। वन बैंक में पैसा कम है, अदर बैंक्स विल हेल्प दैट बैंक, दूसरा बैंक हेल्प करेगा और फेल नहीं करेगा। यूनाइटेड बैंक में भी एक बार हुआ था, लेकिन शनिवार था तो मैनेजर बोला धीरे धीरे चेक को भजाओ। करते करते 12:30 बज गया, बोला 12:30 हो गया, बैंक का टाइमिंग बंद, आप लोग सोमवार को आइए। और उसी दिन रात को चला गया कलकत्ता, यूनाइटेड बैंक का जो हेड ऑफिस है 16 ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट डलहौसी में, वहाँ से जाकर पैसा ले आया। एंड मंडे को जब आदमी लोग गया चेक भजाने, देखा बैंक में पैसा भरा हुआ है, और बहुत कोई उठाया भी नहीं, एंड द रन ऑन द बैंक वाज सेव्ड। So M dash is the bank deposits, V dash is the velocity of circulation of bank deposits. तब सप्लाई ऑफ मनी बाद में फिशर जब बैंक डिपॉजिट्स ले आया, हो गया MV प्लस M dash V dash। अब डिमांड फॉर मनी PT बराबर हो गया MV प्लस M dash V dash, तब P हो जाएगा MV प्लस M dash V dash by T। This is the price level. This equation was given by Fisher. इसके बाद तुमको करने होगा फिशर का थ्योरी का क्या assumptions है, यह तुम लोग किताब से पढ़ लोगे। टी सेठी, आर डी गुप्ता,
एमएल जिंगन मुद्रा बैंकिंग का किताब है। टीटी सेठी से पढ़ो, आरटी गुप्ता से पढ़ो, एमएल जिंगन से पढ़ो, एजम्पशंस करने होगा और साथ में इसका समालोचना क्रिटिसिज्म्स, तब खत्म हो जाएगा फिशर का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या ट्रांजैक्शन वर्जन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे दी क्लास कैम्ब्रिज वर्जन या कैश बैलेंस वर्जन। कैम्ब्रिज वर्जन इसलिए कहा गया था क्योंकि कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स लोग दिया था, जो कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे, पिगू, रॉबर्टसन, मार्शल, कीन्स, ये चारों कैम्ब्रिज स्कूल का थे, उन लोग दिया था, इसलिए उसको कैम्ब्रिज वर्जन कहा जाता है या कैश बैलेंस वर्जन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। एंड दे सेड that money is not only used only for transactions, money is also used to be kept as a store of value. पैसा को हम लोग होल्ड सेव भी करते हैं, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू भी रखते हैं। यह नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।